हेलो एंड वेलकम टू राहीन्स पेज। मैं हूँ राहीन फातिमा और आज है हमारे साथ दारा शिकू हाशमी। तो आज का हमारा एक सेशन है और ये सेशन जिस तरह एक टॉपिक रख के सेशन होता है, ये उस तरह का एक सेशन होगा। इसमें हमारा टॉपिक है कम्युनिकेशन स्किल्स, कम्युनिकेशन इन जनरल, और हम कम्युनिकेशन से ही रिलेटेड चीज़ों पे बात करेंगे। कम्युनिकेशन के ही हम आपको चीज़ें बताएंगे। इंशाल्लाह आपको यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। और आप अगर आपको कोई भी सवाल हुए, हम जब बात करना शुरू करेंगे तो उसके मुतालिक आपके कोई भी सवाल हुए, आप हमें कमेंट कर देगा ताकि वी कुड रीड द कमेंट्स और हम आपको आंसर कर सकें। तो इस तरह एवरीथिंग वुड गो एंड वी वुड टॉक ओनली अबाउट कम्युनिकेशन स्किल्स। अगर आपका अच्छा, तो हम बेसिकली सब कुछ बताएंगे, सब कुछ इंक्लूडिंग ओके वेट सर, वेट आई म्यूट यू, क्योंकि असल में जो आपके फेसबुक से आवाज है वो यहाँ पर भी आएगी। तो मैं Yeah, अभी yeah, कॉमिक को that's शो good अप for होना you. है। Yeah, sure. Okay. Okay, so we have Sayyid Ali Sufina Haider, which is he's saying, Assalamu alaikum and great work, Fatima. Thank you so much. I appreciate the comments so much. Hi, Assalamu alaikum. So Walaikum salam. Fahmiya Ashraf is these days, she's a very active, like, audience ki jo active bande hote, she's very active. And which is great, and I would recommend everybody to watch it till the end so they get every drop of information from this. And inshallah, now because we have 35 people watching, which is, I guess, my biggest record up till now, Yeah, like that's brilliant. 2 minutes and 38 people now. And we have Daleep Permar, and he's saying assalamu Walaikum alaikum, salam. walaikum assalam. And okay, so without further ado, I think, sir, you should introduce yourself because लोग तो ऊपर जाते रहेंगे, लेकिन हमें उनको Yeah, बताना भी है अपने बारे में. absolutely. Well, my name is Dara Shikul Hashmi, as you can see on the screen. And by profession, I'm a speaker, I'm a lecturer. I also do coaching and training as well. My areas of expertise are communication skills. Professionally, I teach at a local college here in Karachi named Scepter College, and I teach A levels there, AS and A2 business. Other than that, I also develop different sorts of programs, different sorts of short courses, kind of a thing, to develop communication skills. When you talk about communication skills, it's a very big and vast topic. You have to communicate with people, you have to talk to people, and that's where I come in. I tell people how to interact with their colleagues, with their brothers, sisters, with their parents, with the teachers, your bosses, and your clients as well, your suppliers as well. So I hold double masters from England. I finished my MSc in 2009, and then I joined Nestle Pakistan in the capacity of corporate sales manager. There I stayed for about a couple of years, and then I had a passion towards academia and teaching and training. So I joined that industry since 2010, and now it's 2020, so it's been about 10 years. And in those 10 years, I have served majorly to a very reputable college in Manchester, UK, which was named as UK College of Arts and Technology. तो मैं वहाँ पर as a senior lecturer के तौर पे मैंने 7 years काम किया. Then I came back in 2016 to Pakistan with my wife and kids, and then I started doing my own thing. I run a small company as well with the name of Dara Shiko Associates, which is about consultancy, which is about development training and things like that. And now I'm here in front of you. So yeah, that's pretty much it. Okay, that's great. Okay, so right. So what do you think? What's the basic thing that people should know about communication? Because I really say that communication is really good. Maybe just because of the fact that I was good at communicating since I was a little girl. So मैं शुरू से इंतहाई बातें करने वाली बच्ची थी. और इसी वजह से because my parents really realized कि मैं बहुत बातें करती हूँ. शायद this is the बातें जो मेरा skill है.
and वो ही मेरा skill था, and here I am in front of you. So please sir, tell us basic things that we should know about the communication. देखिए, सबसे पहले तो ये बात ध्यान में रखनी है कि कम्युनिकेशन स्किल्स इज नॉट जस्ट अबाउट टॉकिंग, इट्स नॉट जस्ट अबाउट स्पीकिंग। ये सिर्फ बात करना कम्युनिकेशन नहीं होता। एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है कम्युनिकेशन का जिसको हम लोग अक्सर इग्नोर कर देते हैं, अवॉइड कर देते हैं, मतलब उसको इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते। तो वो चीज होती है लिसनिंग, एक्टिव लिसनिंग। आई मीन देयर आर टू थिंग्स, यू आर हियरिंग द वॉइस और यू आर लिसनिंग टू द वर्ड्स। So there's a big difference, and people sometimes tend to forget the main thing between these two things. कि हमें सुनना भी है, ठीक है। सुनना, अगर आप सुनेंगे नहीं सही से तो आप उस चीज का जवाब भी दे सकते हैं। सुनने के साथ साथ आपकी जो नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, that needs to be on point as well. When we talk about non-verbal, it's a very alarming thing, because when I tell this to my students and the participants of my training sessions, जब मैं उनसे पूछता हूँ कि आप ये बताएं कि ये जो मैसेज अभी मैं और आप डिलीवर कर रहे हैं एक दूसरे को, इसके अंदर वर्ड्स का कितना कंट्रीब्यूशन है? So people say it's about 50%, 60%. Some people even say 90%, 80%. But surprisingly, it's only 7%. मतलब अल्फाज का जो कंट्रीब्यूशन है वो सिर्फ 7% है। The remaining 93% is your non-verbal, जिसमें 23% आ जाती है आपकी tone of voice, आप हाई पिच पे हैं, लो पिच पे हैं, मीडियम पे हैं, और बाकी जो बचा 70% approximately, that is your body language, कि आप क्या कह रहे हैं अपने जिस्म के थ्रू। मतलब आपकी बॉडी को देखें, आपकी जबान को झूठ बोलना आता है, बात को घुमाना आता है, आगे पीछे की बात करनी आती है, लेकिन जो आपकी बॉडी है उसको नहीं आता, उसको बिल्कुल नहीं आता। आपकी आई मूवमेंट से लेकर आपके जेस्चर से लेकर ईच एंड एवरीथिंग सेंड्स आउट अ सर्टेन सिग्नल। So people need to understand that communication is not just about talking, it's about actively listening, and it's all about understanding your body language and then sending your message across. ठीक है? Yes, because I've attended many sessions on this, and what I really think कि अल्फाज तो होते हैं ना कि भाई it's not important, but you know, because अगर anybody is good at emotional intelligence, they could actually see what you're thinking in your mind. So it's that creepy. It might sound even more creepier when you start knowing more about it, but when you know it, then you could change it in a sense कि आप अपने आप को इमोशनली और इंटेलिजेंट करें, एंड व्हाट यू आर थिंकिंग वो ही अपनी जुबान पर लाएं। बेहतर होता है सच ही करें, अंदर कुछ और बाहर कुछ और। हमने बचपन से सुना है कि झूठ के पाँव नहीं होते, और मैं आपको एक मजे की बात बताता चलूं यहाँ पे कि जब आप सच बोलने का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आपको उसे याद नहीं रखना पड़ता। झूठ अगर आप बोलेंगे आपको उसे याद रखना पड़ेगा, आपको एफर्ट डालनी पड़ेगी, आपको याद रखना पड़ेगा, आपको ये देखना पड़ेगा कि यार मैंने वो फला टाइम पे उस बंदे को ये बात बोली थी, वो आई शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड, आई शुड बी एबल टू रिमेंबर दैट थिंग। मेरे सच की क्या बात है, सच आपको याद रहेगा, इट्स समथिंग व्हिच इज इनबिल्ट इन योर ब्रेन। यस, और ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। हमारे यहाँ ये होता है कि sometimes people really don't realize कि अगर even if they're standing in a certain position, what does that mean, the way they're doing। हमारे यहाँ ये होता है कि सबसे पहले, because even खाने में भी ये होता है, your eyes eat before your stomach, so that somehow also applies to the communication skills कि भाई जिस तरह आप लग रहे हो, your physical appearance, I mean I don't say कि भाई आप शादी में कपड़े पहन के हर जगह चले जाएं, but you should look good। Absolutely. Because आपकी ड्रेसिंग से कोई जज करता है, और sometimes people are judging enough to judge where you're from, who you are, what you do from this। I mean, आपको मजे की बात बताऊं, अगर आपने कभी भी किसी फीमेल ब्लॉगर को देखा हो तो उनको देख के आपको फौरन पता चल जाता है फीमेल ब्लॉगर, because they wear a certain type of hijab, और वो certain type of hijab is same for all female bloggers। Absolutely. And this is how I could guess a female blogger from miles away। Well, not miles away, but अटायर का तो मैंने एक ब्लॉग भी लिखा था अभी 3-4 दिन पहले अटायर के ऊपर ही।
क्योंकि एक छोटी सी मतलब एक वाकया हुआ मेरे साथ कि आई थिंक अबाउट अ फ्यू मंथ्स अगो देयर वाज एन एड ऑन वन ऑफ द वेबसाइट्स सेइंग दैट दे आर लुकिंग फॉर सम न्यू टीचर्स फॉर ए लेवल्स एंड A2 लेवल्स। तो मैंने अप्लाई कर दिया। उन्होंने मुझे ईमेल कर दी कि आप जो है वो फला फला दिन पे आके आपसे इनफॉर्मल चिट चैट होनी है। बेयरिंग इन माइंड इनफॉर्मल उन्होंने वर्ड यूज किया। मैंने कहा ठीक है। Now, because I'm very peculiar about my dressing, I make sure that I am dressed up for the occasion. So I put up my suit, my tie, and everything, and I went straight to the interview place. तो जब मैं एंटर हुआ तो वहाँ पे मैंने देखा कि और भी बहुत सारे टीचर्स आए हैं, लेकिन believe you me, approximately 95% of them were wearing jeans. उन्होंने जीन्स पहनी हुई थी, उन्होंने टी शर्ट्स पहनी हुई थी। हालांकि वो इनफॉर्मल चिट चैट थी, ठीक है, लेकिन इट्स अ सॉर्ट ऑफ अ थिंग दैट्स हैपनिंग बिटवीन you and your prospective employer. So you need to show that kind of determination, that effort, that respect का एलिमेंट आपको दिखाना पड़ता है। तो जब मैं एंटर हुआ, मैं सीधा कमरे में चला गया, तो उन्होंने मुझे देखा एकदम से, उन्होंने कहा कि बस आप 2 मिनट दीजिए। मैंने कहा नहीं सर, टाइम लीजिए, मैं 10 मिनट्स पहले आ गया हूँ, मेरा टाइम जो है वो 10 मिनट बाद है। कह रहे नहीं आप आ जाइए। I went in there within मतलब 5-6 मिनट हुए होंगे, and he was like, I can't hire you as a teacher. And I said, well, that's fine, but can you be able to tell me what did I do wrong? And he said, I'd rather have you as a director for my institution. He said, I've been taking interviews from the last 7-8 days, and nobody has the decency to come up dressed up properly according to the occasion, who's presentable and who can talk. So he said, there is no chance I'm hiring you just a teacher. I'm actually offering you a position as a director. But then again, you know, वो फिर आगे हमारी बात चल नहीं सकी because obviously मैं थोड़ी 1-2 चीजों में और फिर मैंने अपना काम start कर दिया था, तो that requires a lot of focus. But that was something that I wanted to share with a lot of people. और वो sharing ये है कि आप जब किसी जगह पर जा रहे हैं, आप जब किसी जगह पर बात कर रहे हैं, किसी इंस्टीट्यूशन में जा रहे हैं, एम्प्लॉयर के पास जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, आपका अटायर, आपकी हाइजीन, each and everything makes a huge difference. Right now, my Hulia is very difficult, very weird, because there is no nail ki dukaan, barber shop, everything is closed down. So I'm looking like this. But the point is, if you're going to a place, please dress appropriately and then communicate with regards to the things that are happening within that domain. अब आपकी जो कपड़े हैं, ये भी एक तरह से communicate कर रहा है। आपने अच्छे तरीके से ड्रेसअप किया, शेप बनाया हुआ, बालों में जेल लगाई हुई, अच्छे क्लीन होके जा रहे हैं, इसका मतलब ये कि आप प्रोफेशनलिज्म कम्युनिकेट कर रहे हैं। आप अगले बंदे को ये बता रहे हैं कि नहीं यार, आई रिस्पेक्ट यू। टाइम की रिस्पेक्ट कैसे करेंगे आप, कि आपने कम्युनिकेट कैसे करना है, टाइम से 10 मिनट पहले पहुंच जाए। हमारे यहाँ टाइम से 20 मिनट बाद आया जाता है और वो बड़ा नॉर्मल समझा जाता है। सर वो बस लेट हो गई थी, सर वो मेरी गाड़ी खराब हो गई, सर वो फला हो गया, सर वो ट्रैफिक था। ये चीजें गलत है। एंड देन पीपल से कि यार फिर हमें तो चांस नहीं मिलता और यहाँ पे सिफारिश चलती है और यहाँ पे ये मसला है, वो मसला है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड कि वेयर यू आर lacking and where you need to work on yourself. Once that's done, everything is piece of cake. Exactly. I remember जब मैंने नया काम शुरू किया था, in a sense, you know, I started going to different events and, you know, working as a stand-up comedian. तो मैं इंतहाई early, so I was always early because मेरे अब्बा फौजी हैं, तो उनका तो ये होता है ना कि जो भी काम है 5 मिनट पहले तैयार होके बैठ जाना है। So मुझे उसकी आदत थी, मुझे याद है I would go to the event और जो स्पीकर्स हैं वो बाद में आते थे, मैं पहले आके बैठी रहती थी और मैं वेट करती रहती थी यार ये कब स्टार्ट होगा। But then, you know, I was like, यार देखें, I would still come early because I believe that there's still gonna be some place जहाँ पे early आना पड़ेगा। But ये बहुत हमारे यहाँ मसला है because these things, if you start making excuses, they won't hire you. और यहाँ पे मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि सोशल मीडिया पे I talk a lot about social media and how it's so good. And I would want to say कि आपका social media भी आपका social media page is communicating. Because when any employer is hiring you, they see your LinkedIn if you have one. Because these days LinkedIn तो बड़े लोगों के लिए रैंक किया जाता है. Absolutely. They see your Facebook, they see Instagram का तो मुझे नहीं पता, लेकिन they see your Facebook. इतना I know. Because they want to see and they want to know कि अगर ये बहुत extremist है, अगर ये बहुत religious बंदा है, in a sense, you know, religious extremist है, तो हम इसे नहीं हायर करेंगे। अगर ये पॉलिटिक्स में extremist है तो हम इसे नहीं हायर करेंगे because अगर उसने नवाज शरीफ, इमरान खान लगाई हो
पूरे ऑफिस में, तो then it's going to be a big problem for the employer, and they're paying you their hard earned money, and we need to see that. तो ये Yes, बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम देखें कि बहुत सारी चीजें एक सब्लिमिनल मैसेजेस कन्वे कर रही होती हैं, कम्युनिकेट कर रही होती हैं. व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट दैट? भाई देखिए ये चीजें, अब फॉर एग्जांपल मैं स्टूडेंट से बात करता हूँ, कहते सर ये हमारी वो है, क्या कहते हैं, अपना पर्सनल स्पेस है, फेसबुक पे हम बैठे हुए हैं, हम मीम्स शेयर करें, हम आर्टिकल्स शेयर करें, हमारे ऊपर है, ठीक है भाई करो, एब्सोल्युटली करो. लेकिन मेरा अगला सवाल स्टूडेंट से ये होता है कि जस्ट पुट योरसेल्फ इन द शूज ऑफ दैट एम्प्लॉयर फॉर अ मिनट. एक मिनट के लिए अपने आप को समझो कि तुम जो हो वो एम्प्लॉयर हो. अब तुम फेसबुक पे जाओ, गूगल पे जाओ, अब तुम अपने आप को सर्च करो और एक और बंदे को भी सर्च करो और दोनों के प्रोफाइल्स को देखो. एक बंदे का प्रोफाइल उल्टी सीधी मीम्स के साथ, तफरियों के साथ, खराफात के साथ भरा हुआ है, ठीक है, नो प्रॉब्लम, करो. और एक का प्रोफाइल बहुत प्रोफेशनल, टू द पॉइंट, एनालिटिकल अप्रोच अच्छी है, सबसे बातचीत हो रही है, डिसेंट है. तुम किसको चूज करोगे? ऑब्वियसली सी बात है, तुम कहोगे यार जो बंदा इतना अच्छे तरीके से बात कर रहा है, अपना प्रोफाइल उसने इतने अच्छे तरीके से मेंटेन किया हुआ है, यू विल बी इंक्लाइंड to choose the other person, to give preference to the other person. तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये कम्युनिकेशन के अंदर, जो मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स को भी बताता हूँ और मैं अपने लेक्चर्स के अंदर भी ये बात कहता हूँ कि यार देखो, यू नीड टू अंडरस्टैंड वन थिंग, कि आपका जो कम्युनिकेशन का जो स्किल है, दैट विल मेक अ ह्यूज इम्पैक्ट ऑन योर लाइफ. क्योंकि नो मैटर व्हाट, आपने बात करनी ही करनी है. आप चाहे अपने स्कूल में हो, आपने बात करनी है, कॉलेज में हो, बात करनी है, यूनिवर्सिटी बात, काम बात, घर बात, दोस्त बात, जहां पे भी आप जाएंगे आप ऐसा तो नहीं खामोशी से जाके बैठ जाएंगे. तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि द कम्युनिकेशन स्किल मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस. एंड दैट डिफरेंस, अच्छा, यू लर्न ऑन अ रेगुलर बेसिस. You read about it, you take seminars about it, you learn about it, and then gradually you'll see a significant difference in yourself. आपकी इनर कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए, आपकी एक्सटर्नल कम्युनिकेशन अच्छी होनी चाहिए. ऐसा पता नहीं हो सकता कि आप रात को सोएं, सुबह उठें और फर आपकी कम्युनिकेशन एब्सोल्युटली माइंड ब्लोइंग विद यू. नॉट गोना हैपन. The only way you can make it happen is by spending about 20-30 minutes, only 30 minutes. मैं ज्यादा की बात ही नहीं कर रहा. 24 घंटे हैं, 30 मिनट निकाल दीजिए कि यार इस 30 मिनट में मैंने सिर्फ कम्युनिकेशन स्किल्स के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है. That's it. 7 डेज में 30 मिनट्स के हिसाब से हो गए 210 मिनट्स, यानी कि 3 घंटा 20 मिनट आपने कॉन्क्रीट लर्निंग में लगा है. और उसको जब आप 365 डेज के ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो दैट्स अ ह्यूज डिफरेंस. तो छोटे छोटे स्टेप्स लीजिए, मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस. जंप मारने की कोशिश ना करें, ठीक है जी. जी, एंड वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट. और हमें ये है कि बातें करने से बहुत फायदा हो जाता है. आई बीन टू इवेंट्स यहाँ पे मैंने एक छोटी सी बात की, एक छोटी सी कॉन्वर्सेशन की, एंड इट मेड अ ह्यूज डिफरेंस इन माय लाइफ. मैंने अब सो इंटरेस्टिंगली ये हुआ कि मैं मेरा एक ओपन माइक था और मैं उधर गई हुई थी. अब उधर आई फाउंड दिस फिल्म एक्टर, एंड ही इज नॉट, सो ही इज a film actor and comedian, stand up comedian. अब मैंने उनसे रैंडमली जाके बात करना शुरू की, मतलब इतना भी रैंडम नहीं था कि dudes what you doing, इस तरह की कोई बात नहीं हो रही थी. It's like, I've been performing for a time, and I figured out that that guy was making a stand-up comedy group. As in कि पाकिस्तान का वो एक ग्रुप होना था जो सिर्फ स्टैंड अप कॉमेडियंस का होना था. बिकॉज इंडिया में बहुत ज्यादा है, ऑल अराउंड द वर्ल्ड बहुत ज्यादा है, लेकिन हमारे यहाँ एक बहुत एक इंटैक्ट किस्म का महीना परफॉर्मेंस वाला नहीं है, अनफॉर्चुनेटली. एंड ही वाज मेकिंग दैट, सो ही वाज लाइक ओके ठीक है, एंड वी एक्सचेंज नंबर्स. अब a month after I know that they were performing at NIC, the National Incubation Center, जहाँ पे businesses incubate होते हैं गवर्नमेंट के पास. और मैंने उनको फौरन टेक्स्ट किया कि भाई I want to be part of this show, because I had a lot of incubation entrepreneurship ideas मेरे पास थे, और I wanted कि I get incubated or something go, because I was 11 years old and I had very good ideas and I didn't want to step out of the university dumbhead and then do all this. और मैं अगर गई मैं शो पे, तो I had the opening performance. Good. And because I performed at that show,
and because show opener था मेरा जो set था, so the project director and the manager of the NIC, मैंने उनको somehow through my comedy convinced कर लिया at the end that let me in, because when I'll be 18 my dad would be thinking of my marriage and my mom would be thinking ससुराल की पीठ पे कैसे गूगली मारनी है. So they won't really be thinking of me putting me into an incubation center. They'd be thinking of a ससुराल instead. And they were like, yes, ठीक है, जब applications खुलेंगी तो तुम आ जाना. And I was so excited because I would be the first 11-year-old to get incubator, or even to be permitted to apply for a government incubation, because you need to be 18, you need to have papers, kaagazat and all that absolutely, in order to absolutely. do that. And I was all over the place. And then I applied, I got selected, and Wow. then I basically got shortlisted for the pitch. And I pitched for about, I guess, 15 minutes. And it was Fabulous. super. And when I see the video from that, I was like, is that me? It was so good. And the judges were the basically the panel, they were clapping, and then it was basically great. And then when I basically got into the cohort, so the funny thing is that I got mentioned in town halls for my best pitch. Pitch तो कोई राहीन जैसे थे. मैं Wow. लिटरली रूम में भी नहीं थी, मुझे तो रूम से बाहर आके लोगों ने कहा था. मैंने कहा गॉड, पीपल आर गिविंग एग्जांपल्स ऑफ मी. तो कम्युनिकेशन इज ऑल दैट. एक बंदे से बात की, फिर आके बहुत सारे लोगों से बात की, और बातों में बहुत कुछ हो. Raheen, is what you are, I believe, and I don't know, but I believe that you're the only 12-year-old little girl who's doing such a remarkable thing like this. That you're a stand-up comedian, you interview people, you talk about it, and I also have a very high level of respect for comedians because they are very intelligent people. Comedians जो होते हैं बड़े intelligent होते हैं, उनकी observation skills बड़ी कमाल की होती हैं. Then again, वो observation skills किस काम की अगर आप उसको सही से communicate नहीं कर पाए. And that's where again our communication skills comes into place. So how to improve? Agar, I don't know if you're getting any questions about it. We are getting some questions and I'll be showing them. I mean, ये अभी question. Yeah. Please talk about body language as well. Yeah, body language is so important. देखिए, आप body language के अंदर क्या-क्या चीजें आ जाती हैं? आपका posture, आपके gestures, facial expressions, and most importantly, आपकी eye movements. आपकी आई मूवमेंट बता रही होती है. फॉर एग्जाम्पल, मैं अगर एक किसी से सवाल करता हूँ कि यार तुमने आज दोपहर में कितना काम किया, और अगर उसकी आईज ऊपर होके राइट पे लेफ्ट पे चली जाती हैं, इसका मतलब है कि दैट पर्सन इज ईदर मेकिंग इट अप और विजुअलाइजिंग समथिंग. अगर ऊपर होके राइट पे लेफ्ट पे चली जाती है, तो देन दैट मींस कि द पर्सन इज एक्चुअली मेकिंग इट अप. आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल. Every time the eye moves, you are giving a certain sort of information out. ये जो जितनी भी इंटेलिजेंस एजेंसीज होती हैं, जब ये कैदियों के ऊपर मतलब तशद्दुद करके, उनको टॉर्चर करके, जब उनसे सवालात एक्सट्रैक्ट कर रहे होते हैं, तो दे मेक श्योर कि दे अंडरस्टैंड कि उनकी बॉडी उस वक्त क्या कह रही है. वो हमसे बात करते हैं कि सामने हमें देख रहा है, ऊपर देख रहा है, नीचे देख रहा है, उल्टी तरफ देख रहा है, सीधी तरफ देख रहा है. अगेन, अब दूसरी चीज ये, आप मिसाल के तौर पे अब आप खड़े हुए दोस्तों के साथ बात कर रहे हैं, आपका दोस्त कोई बात कहता है जो कि आपको अच्छी नहीं लगती, आप एक बात ऑब्जर्व कीजिएगा, ऑटोमेटिकली आपके हाथ फोल्ड होना शुरू हो जाएंगे, आप डिफेंस पे चले जाएंगे, आपके जो टांगे, अगर आप सीधे ऐसे खड़े हुए आप ऐसे हो जाएंगे, टांगे आप क्रॉस कर लेंगे, क्योंकि you basically are giving out, what you're doing is you are sending out a signal through your body. और ये चीज बहुत जरूरी होती है, क्योंकि लोग अक्सर ये कहते हैं कि यार जिस तरह मैं बॉडी लैंग्वेज को कैसे इंप्रूव करूं, उसकी इंप्रूवमेंट का तरीका यही है कि यू शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट द अदर पर्सन इज सेइंग अबाउट यू, एंड देन यू आर सेइंग समथिंग अबाउट देम एज वेल. अच्छा, इसके अंदर एक बड़ा इंपॉर्टेंट फिनोमेना है जिसको मैं यहाँ पे जिक्र करना लाजमी समझता हूँ. उसे कहते हैं कम्युनिकेटिंग, मतलब डिटेक्टर होता है, जिस तरह लाइट मेटल डिटेक्टर होता है, जिसके अंदर आप पूरी बॉडी के ऊपर एक चीज, आपका इक्विपमेंट होता है, उसको आप लेके जाते हैं तो पता चल जाता है कि मेटल कहाँ पर है, कनेक्शन हो जाती है.
इसी तरीके से कम्युनिकेशन के अंदर भी डिटेक्टर होता है। मिसाल के तौर पे आप मेरे पास आती हैं और आप कहती हैं यार आज का दिन बड़ा गर्म है, अब मुझे डिटेक्टर मिल गया। मैंने करना सिर्फ ये कि जो बात आपने मुझे बोली है उसको मैं पैराफ्रेज करके रिपीट कर दूं। आपने कहा यार आज का दिन बहुत गर्म है, मैं कहूँ हाँ यार आप ठीक कह रही हैं, आज का दिन तो वाकई बहुत गर्म है। आपके सबकॉन्शियस माइंड में मेरी एक पॉजिटिव इमेज चली जाएगी। यू विल फील इंस्टेंट कनेक्शन, इंस्टेंट कनेक्शन। यू विल बी लाइक यार ये तो मुझे समझ रहा बंदा, ये तो मेरी बात से। अब ये नहीं कि हर बात में आप कहें हाँ जी आप ठीक कह रहे हैं, हाँ जी आप ठीक कह रहे हैं, वो तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। हर बात में ठीक है, हर बात में नहीं कहना, लेकिन आपने अगर किसी के साथ अच्छा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाना है, you need to learn how to understand their body language, you need to learn how to use your body positively। ये चीज बड़ी मतलब इसको आप कहते हैं ना अब्यूज भी कर सकते हैं। विद ग्रेटर पावर कम्स ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ऐसा नहीं हो कि आप अपनी बॉडी लैंग्वेज को यूटिलाइज करते हुए गलत कामों की तरफ चले जाएं, ये भी नहीं करना, आप पॉजिटिव लेके जाओ। अब ये एक सवाल आया हुआ है गालिबन स्क्रीन पे उमर फारूक साहब का कि I have a question, I never tried to learn anything about communication, I always have a fear about communication, how to start breaking into this problem। देखें उमर, बहुत जबरदस्त सवाल है आपका, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जब आप कोई नया काम, मिसाल के तौर पे मैं स्विमिंग की बात करूं, स्विमिंग की अगर मैं बात करूं, आपको स्विमिंग नहीं आती आपको स्विमिंग, मैं आपको पानी में फेंक दूं तो आपको पानी में फेंकने से पहले आपको बड़ा डर लगेगा, आप कहेंगे नहीं सर क्या कर रहे हैं, मैं तो डूब जाऊंगा, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। लेकिन जब आप पानी में कूदे उससे पहले मैंने आपको बता दिया, मैंने कहा देखो यार ये तुमने टांगे जो है ना अपनी चलाते रहनी है। अच्छा तुमने कहा सुन ली की बात, ठीक है, तुम पानी में कूदे, ऐसा थोड़ी होगा पानी में कूदते ही तुम एक बहुत बड़े तैराक बन जाओगे। नॉट गोना हैपन। तुम डुबकियां भी लगाओगे, नीचे भी जाओगे, ऊपर भी आओगे, फिर नीचे जाओगे, वो होगा। और वो चीज पहली दफा में ज्यादा डर होगा, दूसरी दफा में थोड़ा कम, तीसरी दफा में और कम, चौथी दफा, एंड बाय द टाइम इट्स द 10th अटेम्प्ट आपका डर तकरीबन खत्म हो जाएगा। ठीक है, ग्लासेस में से आईज नजर नहीं आ रही आपकी, देखें ये मैंने खुद छुपाई हुई हैं आंखें, क्योंकि ऐसा ना आपको पता चल जाए कि मैं क्या कहना, मैं सच बोल रहा हूँ। नहीं यार, मेरी नजर असल में आजकल बहुत कमजोर होती जा रही है, मुझे तो नए चश्मे लेने। तो हाँ, तो बात वही उन्हीं की करते हैं कि वो जो आपने कम्युनिकेशन करनी है, अगर आपकी लर्निंग है कि लर्निंग वो फेयर यहाँ पर है, डर खौफ यहाँ पर है, इसको आपने निकालना है। और वो कैसे निकालना है, आपने प्रैक्टिस करनी है। आपको अगर अजनबी से बात करने में घबराहट होती है, डू इट। क्या होगा ज्यादा से ज्यादा, अगला बंदा कहेगा सॉरी यार मैं आपको तो जानता ही नहीं। आप जाके बात करें, कॉन्फिडेंसली हाथ आगे निकालें, कहें अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम दारा शिको है, आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम ये है, चले जी मैं ये यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ, आपको देखा, मैंने सोचा आपसे बात करूँ, आपकी शक्ल जानी पहचानी। अब आप बात से बात निकाल सकते हैं। उससे क्या होगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप के दैट सप्लाइज द आंसर। अदनान खान साहिब ने भी कुछ पूछा है, place 3 things in your mind, respect your value, and then you will see what other people I can notice about you. Yes, absolutely, I agree with him. Respect is the utmost thing, बहुत इंपॉर्टेंट है रिस्पेक्ट। अभी राहीम मैं आपको रिस्पेक्ट दे रहा हूँ, आप मुझे रिस्पेक्ट दे रही हैं, तभी तो ये बात चल रही है। अगर रिस्पेक्ट का एलिमेंट बीच से हम हटा दें तो बड़ा खराब मामला हो जाएगा, बहुत खराब हो जाएगा। तो रिस्पेक्ट को सबसे ऊपर रखना आप, ठीक है? Exactly, and because sir you teach the A levels, और A levels वाले बच्चों को I guess सबसे ज्यादा जो है फोकस करना चाहिए on communication skills, because आगे they're the future। I mean मुझे भी अभी A levels जाके फ्यूचर बनने में भी like in a sense टाइम है, because ज्यादा आबादी जो है अब is going to the A levels, और जो है वो यूनिवर्सिटी से आएंगे। तो अब हमारे यहाँ ये होता है, because I've seen such dumb university graduates, I'm so sorry to use the language, but I mean, I've had all sorts of experiences, and why the thing is that कि भाई अगर हमें कुछ सिखाया नहीं जाता, सबसे अजीब बात ये है कि हमारे स्कूलिंग सिस्टम में ये नहीं सिखाया जाता, लेकिन दिस इज व्हेन यू आर कंप्लेनिंग। आप घर बैठ के सीख सकते हैं, आपके पास पूरा स्कूलिंग सिस्टम यूट्यूब पड़ा हुआ है, आप उधर सीख सकते हैं, आप कोर्सेरा पे सीख सकते हैं। इतने आजकल तो एडेक्स पता नहीं कौन कौन से आ गए हैं, तो आप सीख सकते हैं अगर आप चाहें। अब हर चीज के लिए यू डोंट गो टू द स्कूलिंग सिस्टम, आप फी देते हैं, आप लिटरेसी के लिए देते हैं, ऑफ कोर्स यू नो स्किल्स तो उसके साथ आते हैं, लेकिन यू नो इट ऑलवेज डिपेंड्स ऑन
who and when and बहुत सही कह रही हो आप। देखो हमारे पाकिस्तान में ना मुझे बड़ा, क्योंकि मैंने इंग्लैंड में 7 years पढ़ाया है, तो आई कम अक्रॉस अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स। इंग्लैंड अपना गोरे भी थे, अपना अफ्रीकी भी थे, इंडियंस भी थे, पाकिस्तानी भी थे। उसमें मैंने एक बात ऑब्जर्व की कि मैं जनरलाइज नहीं कर रहा बात, मैं ये नहीं कह रहा कि सारे के सारे ऐसे ही हैं, लेकिन हमारे जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स थे, दे वर kind of struggling when it comes down to researching, taking initiatives, performing the task more proactively rather than reactively. और उसमें मुझे अंदाजा हुआ कि यार ये जो बेचारे यूनिवर्सिटी में पहुंच रहे बच्चे, उनको रिसर्च का इतना ज्यादा नहीं पता होता, उनको इतना ज्यादा अंदाजा नहीं होता कि रिसर्च कैसे करनी है, किस तरीके से बात करनी है, किस तरीके से इंटरव्यू करना है, क्वेश्चन करना है, वो नहीं कर पाते हैं। अब बात ये है कि आप 100% जिम्मेदारी स्कूल पे, कॉलेज पे, यूनिवर्सिटी पे नहीं डाल सकते। आपके सामने इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी रखी हुई है, youtube.com, दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है। आप डालें उसके ऊपर, कम्युनिकेशन स्किल्स बड़े बड़े चीते आ जाएंगे और अपनी जबरदस्त किस्म की नॉलेज आपके साथ शेयर करेंगे, अगर आप करना चाहें तो। देखिए एक बात हमेशा ज़हन में रखिएगा, मैं आपके तवज्जुह से ये बात जो देख रहा है उसको मैं बताना चाहूंगा। ये बात मैं अपने पल्लू से बांधी हुई है, पल्लू खैर मेरा होता नहीं है, लेकिन मैंने ब्रेन टैटू किया हुआ है इस चीज को। उसका मतलब, ब्रेन टैटू का क्या मतलब है कि मैंने इसको अपने दिमाग में बिठाया हुआ है कि फर्स्ट डिजर्व एंड देन डिजायर। पहले डिजर्विंग बनो, फिर डिजायर करो। पहले उस चीज के अहल बनो, फिर ख्वाहिश करो। हम लोग ख्वाहिश कर रहे होते हैं, अहल नहीं हो रहे होते। बहुत जरूरी है। एक और सवाल आ गया है जनाब, ये उमर फारूक साहब हैं, कह रहे हैं प्लीज से समथिंग अबाउट इंट्रोवर्ट्स, हाउ कैन दे स्टार्ट टॉकिंग टू डिफरेंट पीपल। इफ यू आर एन इंट्रोवर्ट, नो प्रॉब्लम व्हाटसोएवर, ट्रस्ट मी, कोई मसले की बात नहीं है। आप बिल गेट्स, जिसको सारी दुनिया समझती है और कहती है कि जी उससे बेहतरीन बिजनेसमैन कोई नहीं, एंटरप्रेन्योर कोई नहीं है, एक्स वाई जेड, बिल गेट्स वाज एंड स्टिल इज कंसीडर्ड टू बी एज एन इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट है वो, नहीं बात करता वो ज्यादा। मेरे स्टूडेंट्स मेरे पास, मैं आपको बताऊं, मैं क्लास में रैंडमली सवालात करता रहता हूं। अगर मेरे स्टूडेंट्स देख रहे हैं इस वक्त तो उनको पता है ये बात, रैंडमली सवालात होते रहते हैं। और क्योंकि होता क्या है कि मैंने सवाल पूछा तो कुछ बच्चे नजरें झुका लेंगे, इधर उधर देखना शुरू कर देंगे, कहीं आई कांटेक्ट ना हो जाए टीचर के साथ, वरना टीचर हमसे पूछ लेगा। तो मैं उन लोगों से पूछता हूँ। अब कुछ बच्चे उसमें बाद में मुझे आकर उन्होंने कहा कि सर हम जो है ना क्लास में इस तरह सवाल का जवाब नहीं दे सकते। मैंने कहा कोई बात नहीं, ठीक है, नो प्रॉब्लम। ये कहाँ लिखा है कि इंट्रोवर्ट्स जो हैं वो अगर कम बोलते हैं तो वो उनका नेगेटिव साइड है? ये कहाँ लिखा है यार? और या एक्सट्रोवर्ट हैं, फ्लैम्बॉयंट हैं, ग्रेगेरियस हैं, आगे बढ़ के बात करने वाले हैं, ठीक है, उनके चांस, देखिए दोनों के अपने अपने प्रोज एंड कॉन्स हैं, दोनों के अपने अपने फायदे और नुकसान हैं। इंट्रोवर्ट को अगर अपने आप को एक्सट्रोवर्ट में तब्दील करना है, पहली बात तो ये कि इंट्रोवर्ट होना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर इफ यू वांट टू डू दैट, बाय ऑल मींस डू वन थिंग, स्टार्ट हैविंग conversations with एक तो फ्रेंड्स के साथ कन्वर्सेशन होती है, फ्रेंड्स को रहने दें, with those people who are not your friends, who are merely acquaintances, who are merely, जिनको आप मुश्किल से जानते हैं, बिल्कुल अजनबी हैं, आप उनके साथ बातचीत करना शुरू करें। लेकिन ये चीज स्टेप बाय स्टेप आएगी। आप पहले अपने दोस्तों के साथ, अब कुछ जब फ्रेंड्स का सर्कल बैठा होता है तो उसमें एक दो बच्चे हमेशा खामोश बैठे होते हैं, वो नहीं बोल रहे होते, क्योंकि उनके जहन में ये होता है यार क्या बोले, छोड़ो, सुनते रहते हैं। कुछ के जहन में ये होता है यार अगर हमने कुछ बोल दिया तो हमारा ही मजाक उड़ जाएगा। तो ये चीजें जहन में एज्यूम कर रहा होता है बंदा। आप एज्यूम ना करें, जस्ट गो फॉर इट, स्पीक योर माइंड आउट, स्पीक योर हार्ट आउट, ठीक है? एग्जैक्टली और मैं भी यही कहना चाहूंगी कि कम्युनिकेशन स्किल्स का, अगर इफ यू आर एन इंट्रोवर्ट एंड यू थिंक कि भाई मुझे आई हैव सम ट्रबल टॉकिंग टू न्यू पीपल, तो फिर आप क्या करते हैं कि यू नो बादाम निकालेंगे, यू नीड टू ब्रेक दैट शेल विद अ हैमर। एब्सोल्युटली, वेरी वेल, यू नीड टू ब्रेक द शेल। एंड भाई अम्मा अब्बा भाई से तो मैं ऐसे बात करती हूँ ना, जैसे मतलब बिल्कुल ही बातें करती रहती हूँ। बेचारे वो रात को भी कह रहे होते हैं अल्लाह का वास्ता चुप कर दो, सहरी के वक्त भी अल्लाह का वास्ता चुप कर दो, इस तरह कर रहे होते हैं। बट आई नो देम। अब अगर मैं उनसे बात कर रही हूँ और अगर मैं किसी और से बात कर रही हूँ तो देयर ऑफ कोर्स इज डिफरेंट। मैं अब आपको सही पे कॉल करके तो कहूंगी ना डूड्स मैं आपसे बातें कर लूं, डूड्स मैं बोर हो रही हूँ, मैं यूं तो नहीं कहूंगी ऑफ कोर्स। तो और हमें ये इस चीज का ख्याल रखना चाहिए कि हम अपने कंफर्ट जोन से निकल के कभी भी बात करते हैं। मैं भी अपने कंफर्ट जोन से बैठ के नहीं बात करती। अगर मेरे पे अब कंफर्ट जोन में हो तो मैं तो भी बैठ के लेट के जीतो पाकिस्तान देखती हूँ, मैं तो बिल्कुल ऐसा काम नहीं करती हूँ। तो कंफर्ट जोन से मैं निकली हूँ, मैं कहूँ मैं रिकॉर्डिंग देख लूंगी, अभी मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ, राइट? तो हमें जो है समझना चाहिए कि व्हाट्स
व्हाट्स आवर कंफर्ट जोन एंड आप किस तरह कंफर्ट जोन से बाहर निकलते हो। कम्युनिकेशन स्किल्स का ये भी होता है कि यू नो एक लैंग्वेज होता है विद अ सर्टेन पर्सन। अगर मैं किसी इलिटरेट से बात कर रही हूँ तो मैं जो हूँ ना यहाँ पे बड़े बड़े अल्फाज हमारे यहाँ ये भी होता है, शो ऑफ करने का तरीका होता है, अंग्रेजी आप बोलना शुरू करते हैं। मैं वो नहीं करूंगी। अब हमारे यहाँ ये होता है ना कि and which I really like about Sardar Shiku is that I mean he wasn't in London for a good amount of time, but उन्होंने उर्दू नहीं भूली, वो बिल्कुल वो आके oh my god I don't know anything नहीं हुआ है। and we need to see कि भाई आपका जो लैंग्वेज होता है वो भी काफी रोल प्ले करता है in कम्युनिकेशन स्किल्स। सो हमें अपनी स्लैंग्स को अपने फ्रेंड्स तक रखना चाहिए या फिर आपके जो क्लोज फ्रेंड्स हैं उन तक रखना चाहिए। आई डोंट रैंडमली टेक्स्ट एनीबॉडी रूड स्कैरी oh my god dudes OMG see the coronavirus and इस तरह के सारे lol करके emojis GIFs। we need to stop this a bit, we need to learn because आज सुबह भी मैं बैठ के दे रही थी like a talk on basically messaging ethics because हमारा बिल्कुल सिखाई नहीं जाती ना। तो हमें ये देखना है कि भाई वो भी बहुत जरूरी है। अच्छा अदनान खान साहब आप प्लीज इतने लंबे ना इतना बड़ा कमेंट हम प्लीज नहीं दिखा सकते बिकॉज इतना बड़ा कमेंट वुड टेक अप द एंटायर स्क्रीन। ना मेरी शक्ल नजर आएगी ना सर की शक्ल नजर आएगी। क्या कह रहे हैं वो सुनिए, देखें क्या सवाल है इनका। अच्छा खैर बहुत बड़ा है अब। हो teachers काफी लंबा है, मुझे लग रहा है पूरा भी नहीं आया है ये, आखिर में पीपल पे आके रुक गया है। But that's great that you do such fantastic educational methodology की training करते हैं government teachers की through British Council. Fantastic, excellent, privileged to have you here today. Thank you. Yes, and so we went quite over time. हमारा 15-20 मिनट के सेशन होगा। It's like 36. 37 minutes हो गए। Yeah, 37 minutes हो गए in fact. चलें wrap up करते हैं। Yes, so any last words about? Well, no, actually, I need to ask you two questions. Plus, if anybody wants to reach you for some sort of event or anything, how can they reach you? Simple, they can just inbox me on my Facebook. मेरे Facebook पे आके मुझे inbox कर सकते हैं, comment कर सकते हैं, और email मेरा जो है वो यही है darashiko@live.com। तो दारा शिको की स्पेलिंग वही है जो आपकी स्क्रीन पे नजर आ रही है, @live.com LIVE.com। उसके ऊपर आप आके मुझसे बात कर सकते हैं, मैं आपके साथ नंबर भी शेयर कर सकता हूँ। We can have a conversation on the phone as well, so that's something which can be done. Yes. अच्छा तो मैंने आपसे like this wasn't part of the question, but you have a very very different name. What does it mean? Yes. Actually जब मैं पैदा हुआ तो मैं बहुत छोटा था, तो मुझसे किसी ने पूछा नहीं, वरना मैं आसान नाम रख लेता। मेरे साथ भी the thing is, to be on the serious note, when I was born I was a very big baby according to the size and everything. मेरा size बहुत ज़्यादा था, and my dada came to my room to the room and he said कि यार ये जो बच्चा है इसके ऊपर हल्का फुल्का नाम जो नहीं है वो नहीं जचेगा, इसको कोई भारी भरकम नाम दो। So then he came up with the name Dara Shiku, and my father immediately said, "Okay, yes, I love it, and I think we should go ahead with it." Even though my school life was terrible because of the name, my university life was unbelievable because of the name, but because people used to make fun of me, man. Yeah, they used to say all sorts of things about my name, कि भाई कौन है, क्या नाम है। Teachers तक मजाक उड़ा रहे होते थे यार, but yeah, that's a different name. Because मैंने हिस्ट्री में कहीं हिस्ट्री की बुक में पढ़ा हुआ है, इसलिए मुझे था, because it's a very different name. इंडिया पाकिस्तान की कहीं हिस्ट्री में there is some. It's a Persian name, फारसी ज़बान का वर्ड है ये, और ये मुगलिया सल्तनत का एक शहजादा गुजरा है, जिसको वो गुजर गया, मैं शहजादा नहीं, वो गुजर गया तो उसको कत्ल कर दिया गया था, because वो अपने वालिद से बहुत क्लोज था, और उसका वालिद जो था वो उसको जो सल्तनत थी उसको देना चाह रहा था, तो भाइयों ने उसके जो है उसको कत्ल कर दिया था। बट अगेन दरवेश उसकी नेचर थी, और शायराना मिजाज था, मिजाज में बहुत ठहराव था,
और कुछ चीदा चीदा बातें थी जो कि मैंने पढ़ी थी तो मुझे पता चली, तो दैट्स वेयर द नेम दारा शिको came into existence. मेरा नाम के लिए भी for some time I didn't like my name because ये तो राहीन मैंने राहीन नहीं सुना पहले ना। बिल्कुल यही बात है, किसी ने भी नहीं सुना होता है, सारे गलत कह रहे होते हैं, मुझे गुस्सा आ रहा होता है। सो माय नेम बेसिकली मींस ओबीडिएंट, एंड मैं हूँ या नहीं हूँ ये आप मेरे बाप से पूछ सकते हैं। वो ज्यादा इजी होगा, लेकिन मैं तो अपने बारे में यही कहूंगी मैं ओबीडिएंट हूँ, और इसीलिए मैं ओबीडिएंट हूँ, इसीलिए मैं आज तक जो भी हूँ मैं उसी लिए हूँ, वरना मैं नहीं होती। और मैं ओबीडियंस के अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स का होना बहुत जरूरी है ना? ओबीडियंस के अंदर तो कुछ ज्यादा जरूरी होता है। तो yes, तो अब राहीन is also I guess from Persian origin का नाम है ये, and so I have a university in my name, I have a guitar tune in my name, and I have actually a county in my name in Ireland. तो उधर की city in Limerick I think there's a county Raheen because I googled my name a lot. अच्छा तो yeah, इस तरह का है। और एक influencer भी है राहीन खान। वो तो रेहाम खान नहीं, I don't know, नहीं, that's political. वो एक और राहीन खान, there's another राहीन खान। ठीक है। So मेरे भी नाम का यही था, टीचर रामीन कहती थी, इतना कि मेरी फर्स्ट जो परफॉर्मेंस थी उसके ऊपर I was called out रेहान, I was like पता नहीं कौन किसको बुला रहे हैं, and for a minute I was chilling and I was sitting and they were like Rehan Fatima. When they called out the full name, I was like, मेरा नाम तो कोई सीधा बोला करे। I've had bizarre name experiences, Ramin, Rahil, और सबसे बुरा तब होता है when you have a Rahil as a teacher or a Ramin in your class, फिर तो बहुत it's like worse. Oh God. तो ये जो है ना, बाकी आपके व्यूअर्स को मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर इफ दे वांट टू रीच आउट टू मी, आप लोग मुझे बिल्कुल मैसेज कर सकते हैं। अगर कोई कंसर्न है, कोई कम्युनिकेशन के हवाले से बात करनी है, कोई चीज़ आपको परेशान कर रही है, यू जस्ट वांट टू हैव अ लिटिल बिट ऑफ डिस्कशन अबाउट दिस होल थिंग, तो आप मुझे बिल्कुल आराम से मेरे फेसबुक पे आके मुझसे बात कर सकते हैं। आई एम मोर देन हैप्पी and more than available to help you all, to assist you all with little knowledge and little research that I have conducted in the past few years. तो मेरे लिए खुशी का बाइस होगी ये बात कि मैं आप लोगों के साथ अपनी छोटी मोटी नॉलेज को शेयर कर सकूं। And so yeah, so that's it then. Yes, I just want to respond to a comment which is Rehan Allah wala. सर मैं इंतहाई कोशिश कर रही हूँ कि मुझे वसीम शफी अल्लाह वाला इंटरव्यू दे दें, वो नहीं देते। मैं तब से कोशिश कर रही हूँ फॉर अबाउट लाइक 2 weeks, लेकिन कोशिश जारी रखी है, इंशाल्लाह वो देंगे। तो okay, so with this we end our session. I hope you guys enjoyed. We had वेरी गुड ऑडियंस, और आखिर में दोबारा 38 पे चली गई ऑडियंस, दोबारा डिवाइड हो रही है। So that's great. Thank you so much for watching, and inshallah हम इसी तरह के सेशंस करते रहेंगे with different people with different topics. And thank you so much for watching. Thank you so much, sir, that you came and you told us so much about the communication skills. आपने हमारे comments को respond किया, मजे की बातें हुई. And thank you so much. I had fun. It's a pleasure, and I'm honored that you gave me an opportunity to come on your channel and to speak to so many people about it. So that's good. That's good. Great. Okay, so I just want to respond to one last comment. Amjad Farooq, Rahim, we can do session on Facebook earnings. Acha, sure, you drop me a message on Messenger, but make sure you tell me who you are, and you make sure you tell me कि मैंने आपके पोस्ट के नीचे कमेंट किया था, वरना I literally don't remember. 15 मिनट बाद मुझे पूछेंगे, मुझे नहीं याद होगा। तो you drop me a message and you do that, or inshallah we'll figure something out. Okay, great. So thank you so much, and Allah Hafiz to our audience. और हमारे audience 48-50 पे चली गई थी end पर। Oh my God, that's amazing. End पे इतनी ज़्यादा होती थी audience। चलें, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होती है। Keep fighting the good fight, and it's been a wonderful experience.
और इंशाल्लाह I wish you all the best. I wish each and every one of you all the best, and I'm sure that you guys will do excellent in your life. ठीक है जी, इजाजत ठीक है, है अल्लाह जी हाफिज जी बेटा. अल्लाह हाफिज.